So in the step one, X2 in presence of sunlight, it will give homolytic dissociation. और इस प्रोसेस का अगर हम डेल्टा एच देखें, डेल्टा H1, तो डेल्टा H1 इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. और अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएं, वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, सो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ये यहाँ पे है x2 और इस पोजीशन पे आएगा x डॉट. So the gap here is delta H1. Also we can say that the activation energy EA1 is equal to delta H1. Delta H1 product minus reactant होगा, so that is product higher potential energy पे, reactant lower potential energy पे. This is positive, that means this is endothermic. So first step endothermic हो गया. नोट करें. Then in step 2, RH reacts with X dot to give R dot plus HX. So this reaction will take place through a transition state जहाँ पे R H वाले बॉन्ड टूट रहे होंगे. This is the transition state. So basically this RH bond splits and HX bond is formed. So if we write the potential energy versus reaction coordinate, so ये कुछ इस तरीके से आएगा. इनिशियली रिएक्टेंट है हमारे पास RH प्लस एक्स डॉट. ये जो पीक है दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पे हम देखते हैं R और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. एंड फाइनली प्रोडक्ट इस स्टेप के लिए होगा R डॉट प्लस HX. The potential energy difference between reactant and product is delta H2. और डेल्टा H2 में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में फॉर Cl2 एंड Br2. ऑल्सो एक्टिवेशन एनर्जी EA2 ये हो जाएगा. EA2 is not equal to delta H2 and delta H2 is positive for I2 and Br2, जिसमें I2 में ज़्यादा पॉजिटिव होगा यानी कि एंडोथर्मिक होगा. दैट मीन्स इधर कहीं पे खत्म होगा. delta H2 for I2 and Br2 and delta H2 is negative for
Cl2 एंड Br2 नहीं, इसको Cl2 एंड F2 करें. डेल्टा H2 इज नेगेटिव फॉर F2 एंड Cl2, जिसमें F2 में ज़्यादा नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू Cl2, यानी फ्लोरीन मोर एक्सोथर्मिक होगा इन कंपेरिजन टू Cl2. Step 3. R dot reacts with X2 to give a transition state जिसमें RX bond बन रहा होगा. And finally the product is Rx plus X dot. For this reaction, delta H3 is negative, and अगर हम कौन ज़्यादा एक्सोथर्मिक है इसके हिसाब से देखें, so it comes out to be F2, Cl2, Br2 and I2. Reactant R dot plus X2, transition state, final product is Rx. ये हो जाएगा डेल्टा H3, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट E83. So we can see that step 3 is exothermic for all halogens. Exothermic for all halogens. Step 4, will give X2. Now इसके लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएं, सो फ्री रेडिकल जुड़ के X2 बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. X और X डॉट जो है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी पे कंपाउंड बन जाएगा, तो लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसको कहते हैं डेल्टा H. यहाँ पे फोर्थ स्टेप के लिए डेल्टा H4. सो अगर हम देखें एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज 0, delta H4 that is negative, and there is one step में हो रहा है, there is no transition state. So we can write in step 4, that is
termination step the activation energy is 0. In step 4, that is the chain termination step, the activation energy is 0. So यहां से अगर हम कंक्लूड करें, so first point, homolysis of halogen is always endothermic, जो कि स्टेप 1 में हो रहा था. सेकेंड पॉइंट, step 2 is slowest because activation energy 2 EA2 is maximum and a strong carbon hydrogen bond is broken and R dot is formed. Third point, step 3 is endothermic. Sorry, step 3 is exothermic for all halogens. And fourth point, the termination step is always exothermic and has EA4 equal to 0. सो सेकेंड स्टेप ही डिफरेंस है, जहां पे हम देखते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए एक्सोथर्मिक होगा, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए एंडोथर्मिक होगा. इसी वजह से फ्लोरीन क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है. एंड दिस इज द RDS स्टेप ऑल्सो, स्टेप 2. ओके, देन अगर हम रिएक्शन देख लें विथ SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. स्टेप 1 में in presence of heat or sunlight, this RO will split to give 2 RO dash dot. Then in the second step, RO free radical will react with RH to give, let it be R dash. So मिल जाएगा R dash OH plus R dot free radical. In the third step, R dot SO2Cl2 से क्लोरीन निकाल लेगा बाहर to give RCl plus SO2Cl. In the fourth step, SO2Cl
will give SO2 gas plus Cl dot, free radical. In the fifth step, this Cl dot will react with RH to give R dot plus HCl. Then in the sixth step, ये R dot फिर से जाके SO2Cl2 से रिएक्ट होगा और उसके बाद वापस से ये रिएक्शन रिपीट होती रहेगी. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, स्टेप 1 इज द चेन इनिशिएशन स्टेप. सो हम लिख लेंगे चेन इनिशिएशन step 1 and step 2. Then chain propagation is step 3, step 4 and step 5. The RDS step जनरली आप देखें फ्री रेडिकल में जब RH बॉन्ड स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, तब होता है यहां से. So RDS step is step 5. So 3, 4, 5 are the chain propagation and 1 and 2 are chain initiation. So iodination, it is an exothermic and reversible reaction, and in this reaction HI molecule is formed as a product which is a strong reducing agent, and it can reduce Ri जो हमारा प्रोडक्ट है back to RH. So HI is oxidized to I2 by using oxidizing agent. रिएजेंट्स हम पहले ही देख चुके थे कि HI को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे थे. अदरवाइज आयोडिनेशन वुड बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन. फॉरवर्ड शिफ्ट कराना है अगर आपको, तो इस केस में आपको रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो HI को ऑक्सीडाइज कर सके. सो जनरल रिएक्शन आप देखें, RH on reaction with I2 in presence of sunlight will give I plus HI. Now for this HI, इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए हम लोग लेते हैं HiO3 और लेंगे हम HNO3 ले सकते हैं इसके अलावा, या फिर हम लेते हैं HGO. So HI on reaction with HiO3 will give I2 plus H2O. HNO3 के साथ, these are all strong oxidizing agents जो HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर दें. I2 plus NO2 plus H2O. HGO में HI को ऑक्सीडाइज कर दिया और HGO खुद रिड्यूस हो जाएगा to give Hg2I2 प्लस वाटर भी होगा. So this is an endothermic and a reversible reaction, and HI formed is a strong reducing agent. So it has to be oxidized to I2. HI
शुड बी ऑक्सीडाइज टू I2, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, नहीं तो HI से ये वापस पीछे शिफ्ट हो जाएगा। So the product here is I2 plus Hg2I2. HgO में मरकरी के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Hg2I2 में आओ तो आयोडीन पे -1, मरकरी पे +1 आ जाएगा, तो Hg इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब I2 में आयोडीन पे -1 से I2 0 आ रहा है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Hg मरकरी का रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो अगर हमें फ्री रेडिकल रिएक्शन कराना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि फ्री रेडिकल बने, तो वो मैं नोट करा देता हूँ। कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन, कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन, पहला प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर, प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। सो कई सारे फ्री रेडिकल इनिशिएटर हो सकते हैं, जैसे सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं लाइट, H न्यू। सेकेंड, अभी हमने देखा, हमने यूज किया R2O2, दैट इज ROOR, जो कि स्प्लिट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट टू गिव RO। देन तीसरा इनिशिएटर यूज कर सकते हैं हम तो इनमें से कोई ना कोई इनिशिएटर होना चाहिए आपको अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन कराना है। तो इसको आप जब हीट कर देंगे तो बीच से होमोलिटिक डिसोसिएशन हो जाएगा। देन फोर्थ, C2H5 4Pb, दिस इज टेट्राइथाइल lead TEL. So tetraethyl lead on heating, it gives 4C2H5 dot plus Pb. So फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं आप the compound which have weak covalent bond and undergo
homolysis easily to produce a radical which can initiate the reaction is free radical initiator. The compound which have weak covalent bond and undergo homolysis easily to produce a radical which can initiate the reaction, which is free radical reaction, is free radical initiator. Initiate करेगा reaction, तो initiate करने के लिए free radical produce होना चाहिए. Then second point, free radical inhibitors. Free radical inhibitors, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, retarders. लिखें, the compound which can consume R dot free radical or stop or slow down the chain reaction are called free radical inhibitors. So compound which can consume R dot are inhibitors basically. First example इसमें होगा O2 का. O2 has 2 electrons in antibonding molecular orbital. So free radical के साथ जब हम O2 को ऐड कर देते हैं, so we get ROO. In presence of free radical it will give ROOR. तो क्योंकि फ्री रेडिकल इसने एब्सॉर्ब कर लिया, इस वजह से फ्री रेडिकल इनहिबिटर्स की तरह एक्ट कर सकता है. सेकेंड is NO. NO R dot, it gives RNO. Then third example is benzoquinone. Benzoquinone is this compound
and after reaction it gives एक पॉइंट नोट कर लीजिए, oxygen is best inhibitor and it can consume 2 R dot. जब इनिशियली अगर आप देखें तो R डॉट देन O2 के साथ रिएक्ट होके ROO डॉट बनेगा, दिस बिकम्स लेस रिएक्टिव and we have finally this ROOR. Then this can further, अगर सनलाइट या हीट है तो ये फिर से स्प्लिट हो सकता है, तो लिखे हम इनिशियली द रेट slows down as free radicals are consumed. So reaction stops for a period of time then halogenation of higher alkanes. Halogenation of higher alkanes की बात कर लेते हैं. So हमने ये देखा that rate of reaction for halogens was F2 जो कि बहुत ही ज़्यादा था as compared to Cl2, then Br2 and then I2. And for chlorination ये देखने को मिलता है that reactivity of hydrogen for 1 degree, 2 degree and 3 degree, अगर 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 है तो 2 डिग्री की रिएक्टिविटी होगी लगभग 3.8 एंड 3 डिग्री की रिएक्टिविटी होगी 5. मतलब इसका यह है कि जिस टाइम इंटरवल में 1 डिग्री हाइड्रोजन एक बार रिएक्ट होगा उतने ही टाइम में 2 डिग्री 3.8 बार रिएक्ट हो चुका होगा और 3 डिग्री 5
टाइम्स रिएक्ट हो चुका हो। या फिर ऐसे समझे, अगर रिएक्टिविटी 1 है तो 2 डिग्री 3.8 टाइम्स मोर रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से, एंड 3 डिग्री विल बी 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम लें तो ये 1 हो जाएगा, नियरली हम इसको लेते हैं 3, एंड 3 डिग्री को लेते हैं 5। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट यील्ड, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। कैसे यूज करना है अभी देखिए, नोट करें यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल, if we have on reaction with Cl2 in presence of sunlight, the number of product will be given by the types of hydrogen. So यहाँ दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, एक प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ओके ये दोनों एक जैसे, और ये 2 डिग्री वाला अलग है, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा प्रोडक्ट होगा अगर नाउ कितना परसेंट कौन सा प्रोडक्ट मिला है वो निकालने के लिए हम क्या करें। सो 1 डिग्री वाले ऐसे 6 हमारे पास रिएक्टेंट थे, तो वी विल से 6 और उनकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री वालों की थी 1, डिवाइड बाई टोटल रिएक्टिविटी इंटू प्रोबेबिलिटी। तो 1 डिग्री वाले थे 6, तो 6 इंटू 1, प्लस 2 डिग्री वाले थे 2 और उनकी रिएक्टिविटी थी 3, तो 2 इंटू 3, दिस कम्स आउट टू बी 50%, मल्टीप्लाइड बाई 100 भी कर दो, मल्टीप्लाई दिस कम्स आउट टू 50%। इसी तरीके से 2 डिग्री का निकालना है तो 2 डिग्री वाले थे कितने रिएक्टेंट में, देखो यहाँ पे थे ऐसे 2 इंटू 3, 2 थे और रिएक्टिविटी हमने ली 3, डिवाइड बाई टोटल रिएक्टिविटी इंटू प्रोबेबिलिटी, दैट इज 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 100, दैट इज 50%। तो आपको 50% 1 डिग्री वाले मिलेंगे और 50% 2 डिग्री वाले मिलेंगे। हालांकि 1 डिग्री वाले 6 थे जब, और 2 डिग्री वाला सिर्फ 2 था, बट क्योंकि 2 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव है तो उस पर अटैक ज़्यादा जल्दी होगा। तो जब तक 1 डिग्री पे एक अटैक होगा तब तक 2 डिग्री पे 3 बार अटैक हो चुका होगा। इस वजह से हम देख रहे हैं 50-50% यहाँ पे आ जाता है। तो अगर आप परसेंटेज यील्ड चाहते हो, नोट कर लिया हमने यहाँ तक। तो अगर हम यील्ड चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी से, और किसी भी एक का रिएक्ट Cl2 in presence of sunlight. So we have to draw the products and also we have to find the percentage yield of each product. So ये 1 डिग्री और 1 डिग्री ये दोनों एक जैसे हो गए, 2 डिग्री 2 डिग्री एक जैसे हो गए, बीच से सिमेट्रिक है। सो एक प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, और इसका परसेंटेज यील्ड अगर हमें चाहिए, सो 1 डिग्री वाले थे कितने ऐसे, तो 6, रिएक्टिविटी 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 1, प्लस 2 डिग्री वाले कितने थे 4, रिएक्टिविटी 3 इंटू 100, ये आ जाएगा 33.3%।
देन सेकेंड प्रोडक्ट जो बन सकता है वो है इसमें परसेंटेज यील्ड इज 4 into 3, 6 into 1 plus 4 into 3 into 100, that is 66.67%. But this carbon is also chiral, so due to chirality यहाँ दो प्रोडक्ट आ जाएंगे हमारे पास D and L. तो ये D plus L का था 66.6% या 66.67%. अगर मैं D फॉर्म का ही देखूं सिर्फ तो दिस शुड बी 33.3% लगभग, एंड द L फॉर्म शुड ऑल्सो बी 33.3%. तो कुल मिला के मेरे को 3 आइसोमर मिल रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर 2 मिल रहे हैं, बट एक स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है. तो टोटल प्रोडक्ट अगर पूछे हमसे तो अब मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म को भी जोड़ूंगा और ये हो जाएगा 3, और परसेंटेज यील्ड भी हम देख पा रहे हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ये आप सॉल्व करें खुद से. सो आपको प्रोडक्ट ड्रॉ करना है एंड ऑल्सो आपको ये बताना है दैट व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट. व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ. तो मेरे पास एक 1 डिग्री वाला है और एक 3 डिग्री वाला है, बाकी ये तीनों 1 डिग्री वाले एक जैसे हैं. तो एक प्रोडक्ट तो ये मिलना चाहिए CH2Cl और CH3, और दूसरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए ओके. अब इन दो प्रोडक्ट में परसेंटेज यील्ड की बात करें. फर्स्ट वन में देखो 1 डिग्री वाले थे कितने, 9 इंटू रिएक्टिविटी 1 डिवाइड बाय 9 इंटू 1 प्लस 3 डिग्री वाला कितना था, 3 डिग्री वाला था 1, और उसकी रिएक्टिविटी लेनी अपने को 5. तो ये कितना आ जाता है 9 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, 5 और 9 13, 14, 9 बाई 14 इंटू 100, 9 बाई 14 इंटू 100 कितना होगा इंटू 100. दिस इज नियरली 64%. 75% तो नहीं आ रहा, दिस इज नियरली 64%, नियरली 64%. और ये 3 डिग्री वाले का कितना हो जाएगा फिर, तो 5 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 100, दैट इज 34 36 36%, 35 पॉइंट समथिंग 36% ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ओके तो आपको रिएक्टेंट में देखना है कि आपके पास कितने थे. जैसे 1 डिग्री वाला रिएक्टेंट में एक था तो 1 इंटू 5, रिएक्टेंट में ऐसे 9 थे. तो जब क्लोरीन को अटैक करना होगा तो 1 डिग्री वाले 9 ऑप्शन है इसके पास में, तो वो प्रोबेबिलिटी अटैक की 9 पे 9 इंटू 1 किया मैंने. इस वजह से रिएक्टिविटी तो 1 थी लेकिन 9 ऑप्शन थे ऐसे. 3 डिग्री वाले के पास के लिए कितने ऑप्शन थे ऐसे, एक, तो 1 इंटू 5, लेकिन रिएक्टिविटी क्योंकि 3 डिग्री की ज़्यादा है तो फास्ट रिएक्ट हो जाएगा. नाउ फॉर ब्रोमिनेशन अगर हम देखें, फॉर ब्रोमिनेशन जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वो है 1 डिग्री का अगर 1 है तो 2 डिग्री का होगा 80 एंड 3 डिग्री का होगा 1600. दैट मीन्स 1 डिग्री अगर किसी एक टाइम इंटरवल में एक बार रिएक्ट होता है तो 2 डिग्री 80 टाइम्स रिएक्ट हो चुका होगा और 3 डिग्री 1600 टाइम्स रिएक्ट हो चुका होगा. सो अगर हम एक एग्जांपल देख लें और इससे हम प्रोडक्ट निकाल लें तो समझ आ जाएगा आपको कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. फॉर एग्जांपल पुराना वाला ही रिएक्टेंट ले लेता हूँ मैं.
इसमें हम रिएक्ट करा रहे हैं Br2 लेट्स से हीट में, और सनलाइट ले लो। ड्रॉ द प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, परसेंटेज यील्ड 1 डिग्री वाले थे 9, रिएक्टिविटी 1, 9 इंटू 1। अब 3 डिग्री वाले का कितना है, 1 है। रिएक्टिविटी इंटू 100 कितना आ जाता है, ये लगभग आ जाएगा 0.6%। और दूसरा, नाउ दिस इज 1 इंटू 1600 हो गया होगा, 9 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1600 इंटू 100, ये आ जाता है लगभग 99.4%। सो क्योंकि समझे यहाँ पे देखिए इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है, बिकॉज 3 डिग्री बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्यों, इवन दो देर इज ओनली 1 3 डिग्री हाइड्रोजन, बट 1600 टाइम्स अटैक हो रहा है उस पर, 1600 टाइम फास्टर है ब्रोमिनेशन। सो ऑब्वियसली 3 डिग्री बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने लगता है 1600 टाइम्स होने की वजह से। जबकि आपने ये देखा कि जब आप क्लोरीनेशन करा रहे थे तो इस रिएक्शन में 64 एंड 36% आ रहा था, जबकि अब ये 99.4 हो गया 3 डिग्री वाला, और 1 डिग्री वाला 0.6 हो गया। तो नेग्लिजिबल अमाउंट है 0.6% एक तरीके से। तो आप ये कह सकते हो कि 3 डिग्री अगर प्रेजेंट है तो बाकियों की रिएक्टिविटी से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सो पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होता है ब्रोमीन, जबकि क्लोरीनेशन में सेलेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। यानी कौन से पोजीशन पे अटैक करना है ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता 3 डिग्री में, बट ब्रोमिनेशन में ये बहुत ज़्यादा मैटर करने लगता है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। ब्रोमिनेशन is what? This is nearly 99.4%, and 1 degree is nearly 0.6%. So which is major product and which is minor product? हम ये बोल सकते हैं ट्रेस अमाउंट में बन रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट में बन रहा है 1 डिग्री प्रोडक्ट। राइट डाउन, ब्रोमिनेशन इज मोर रिएक्टिव, सॉरी मोर सेलेक्टिव, ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन। ज़्यादा सेलेक्टिव है कि 3 डिग्री अगर है तो 3 डिग्री पे ही अटैक करना प्रेफर करेगा, 1 डिग्री पे अटैक नहीं करेगा। जबकि हम लिख सकते हैं क्लोरिनेशन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमिनेशन। क्लोरिनेशन मोर रिएक्टिव है और ब्रोमिनेशन मोर सेलेक्टिव होता है। क्योंकि क्लोरिनेशन मोर रिएक्टिव है, इस वजह से अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरिनेशन एंड क्लोरिनेशन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमिनेशन। तो अगर मैं यहां कहूं और इसमें हम रिएक्ट कर दें Cl2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्योंकि क्लोरिनेशन मोर रिएक्टिव है तो आपको देखने को ये मिलेगा यहाँ दैट देयर इज मोर क्लोरिनेशन प्रोडक्ट, मतलब मेजर क्वांटिटी में क्लोरिनेशन प्रोडक्ट होगा। लेकिन ब्रोमिनेशन जो होगा उसमें 3 डिग्री प्रोडक्ट विल बी
ऑलमोस्ट 100% एंड 1 डिग्री प्रोडक्ट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट क्लोरिनेशन ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा ब्रोमिनेशन से। लेकिन जितना भी ब्रोमिनेशन होगा उस ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री होगा मेजर क्वांटिटी में देन 1 डिग्री। Okay, so more chlorination product because chlorination is more reactive, because chlorination is more reactive. ओके, एक और एग्जांपल ट्राई करें, आप खुद से बनाओ प्रोडक्ट। हमारे पास है ऑन क्लोरिनेशन, ड्रॉ द प्रोडक्ट्स एंड व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, ये भी बताइए। अच्छा, जब टोटल प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी काउंट करना होगा आपको। सो टाइप ऑफ हाइड्रोजन काउंट किया हमने, 1, 2 एंड दिस इज 3। प्लस सो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ रहे हैं, जिसमें जो सेकेंड वन है इसमें कायरल कार्बन भी मौजूद है, तो इस पे हो जाएगा D+L, यानी 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो टोटल हम लोगों को 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। नाउ फर्स्ट वन में अगर हम परसेंटेज यील्ड निकालें, सो हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 1 डिवाइड बाय, प्लस 2 डिग्री वाले थे 6 इंटू 2, सॉरी 6 इंटू 3 इंटू 100, एंड दिस इज नियरली 25%। देन ये दोनों 2 डिग्री हैं, बट ऑल्सो कनेक्टिविटी भी देखना होता है। 2 डिग्री जुड़ा है एक 1 डिग्री से और एक 2 डिग्री, जबकि ये 2 डिग्री जुड़ा है 2 डिग्री से, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सो इसकी बात करें अगर हम, तो ऐसे थे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे सेकेंड वाले, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 100, दिस इज 50%। बट 50% में दो हैं D+L, तो अगर आप सिर्फ D फॉर्म की बात करें तो वो होगा 25%, L फॉर्म 25%। नेक्स्ट वन 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 100, दिस इज अगेन 25%। तो चारों प्रोडक्ट हम लोगों को 25% मिल जाएगा।
अच्छा, एक और एग्जांपल ट्राई करें। तो सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिलेंगे वो निकालिए, फिर आप निकालेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। जब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कह रहे हैं तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी काउंट करना पड़ेगा। जब हम 11th में पढ़े थे तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा था, लेकिन अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पढ़ चुके हैं। तो जहाँ कायरल कार्बन आपको दिखाई देगा वहाँ पे D+L आपको ले लेना है, यानी डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म। सो टोटल कितने प्रोडक्ट मिले हमें? तो देखो टाइप ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो। 1, 1, 2, 3 एंड 4। 1 डिग्री वाले ये 1 और 4 अलग अलग होंगे, तो जरा ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। 1, ना इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कायरल हो चुका है, यानी कि इसमें 2 काउंट करने पड़ेंगे आपको। देन थर्ड वन, ना इस केस में 2 CH3 हो गए, कायरल नहीं है, तो ये थर्ड प्रोडक्ट होगा। एंड देन दिस इज द नेक्स्ट। क्या हम इस कार्बन की कायरलिटी की बात कर रहे हैं? क्या ये कार्बन कायरल है? देखो, तो ये हो गया CH2Cl, CH3, और ये CH2CH3, ये भी कायरल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D+L। तो टोटल प्रोडक्ट हो जाएंगे यहाँ पे 6। ओके, परसेंटेज यील्ड निकाल रहे थे फिर हम। तो जिससे क्लोरीन जुड़ा वो कायरल नहीं हुआ, लेकिन उसका बगल वाला कार्बन कायरल हो गया, तो ठीक है, हो गया तो हो गया। तो वहां भी 2 हो जाएंगे D+L। फर्स्ट वन देख रहे थे हम लोग, तो ऐसे थे 2 × 1 डिवाइड बाय 1 डिग्री वाले, देखो 2, 3, 6, 3, 9, 9 × 1 प्लस 2 डिग्री वाले थे 2, 2 × 3 प्लस 1 × 5 इंटू 100, कितना जाता है ये? ट्वेंटी टू, 10, 100। ओके, टू क्यों लिया यहाँ पे मैंने? 1 मिनट रुको, ऐसे 2 थोड़ी थे, ऐसे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ 3 होगा। 3 × 1 × 100 करो, तो ये आ जाएगा 10, लगभग 3/20 × 100, दैट इज 15%। सेकेंड वन में ऊपर में कितना ले लिया जाएगा अब? ये हो जाएगा 2 डिग्री के लिए, तो 2 × 3, दैट इज 6, तो 6/20, 30%।
30% में डी फॉर्म कितना होगा? 15%। एल फॉर्म 15%। थर्ड वन ऊपर में आ जाएगा 5 × 1/20, तो 25%। एंड लास्ट वन, तो ये थे 6 × 1 about 20 divide by 20 × 100, that is 30%। 30%। बट इसमें दो फॉर्म है डी प्लस एल, तो डी फॉर्म हो जाएगा लगभग 15% एंड एल फॉर्म विल बी 15%। नोट करो। अगर यहाँ पे Br2 रहता तो फिर क्या प्रोडक्ट बनता? अगर मैं पूछता यहाँ पे ड्रॉ द प्रोडक्ट, तो आप देखें 3 डिग्री वाला है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ। दिस वुड बी द मेजर क्वांटिटी और 90% से ज़्यादा, और बाकी जो होंगे वो ट्रेस अमाउंट। अदर प्रोडक्ट, whereas this one is the major product।